Very good morning, students. We are discussing chapter number 3, that is safety and first aid. We were discussing about the first point of the chapter, that is safety. So safety is very important for our life. And what result to an accident? A carelessness. जब हम careless हो जाते हैं, then that result in an accident. And accident में we get ourselves hurt. So what we should do? We should follow some safety rules. These were some general safety rules which we have discussed. Now today I am going to tell you in lecture 2 how we should behave at a road. We know, every one of us know कि we should follow some road rules, some traffic rules. We should follow what? We should follow some traffic rules. Why? We should follow traffic rules to avoid accidents. अगर हम ट्रैफिक रूल को फॉलो नहीं करेंगे then what will happen? Accidents will happen. So to avoid accidents we should follow some traffic rules that we have learned in class 4th itself. Now coming to the next point, what we should do? We should follow traffic signals as well. Traffic signals होते हैं ना? You might have seen somewhere on a board. ये P बना होता है ब्लैक कलर से and then it is cutted with red color. What does that indicates? That indicates no parking. That indicates no parking means we cannot park any vehicle over that place. इसी तरह से you might have seen ऐसा एक एरो बना होता है. इसका एरो का क्या मतलब होता है? यू टर्न. इस एरो का मतलब क्या होता है? यू टर्न फ्रॉम हेयर. और अगर हम इसी यू टर्न को ऐसे काट देंगे तो उसका क्या मतलब होता है? नो यू टर्न. सो जहाँ जहाँ ऐसे सिग्नल्स बने होते हैं वी मस्ट अंडरस्टैंड द मीनिंग. इसी तरह से अनदर कॉमन सिग्नल इज ये साइन होता है टू वे का. यहाँ से टू वे दैट शोज दैट दिस इज टू वे रोड. और अगर इसको कट कर दें तो व्हाट दैट डज शो? दिस शो दैट इट इज़ नो टू वे रोड, ओनली वन वे रोड. सो दीज टाइप्स ऑफ सिग्नल्स वी मस्ट अंडरस्टैंड. जैसे नो स्मोकिंग का साइन होता है, सिमिलरली जेब्रा क्रॉसिंग का साइन होता है. वी मस्ट अवेयर बाय ऑल द सिग्नल्स. आई विल सेंड यू अ पिक ऑफ योर बुक so that you can understand the traffic signals. And what's your homework today? Your homework for today is make the diagram of 10 traffic signals. And along with traffic signal, what you have to do? You have to write the name of that traffic signal. Suppose I have made 5 here, I have made 6 here. How? एक अगर हम इस पे रेड मार्क हटा देंगे then it will become the traffic signal of U-turn, and if we will cut it then it will become no U-turn. Got it? And similarly this, if we will cut this P then it is no parking, but if we will not cut then it will be parking. Got it? So like that I'll send you a pic of your book. If you have to, you can see from your own. If you don't have then still you can see from net online as you are using, and I'll send a pic. What you have to do? You have to draw 10 traffic signals on a sheet of paper. ठीक है? Now another point what I want to discuss today is about fire. आग लग जाती है ना. So what we should do? सबसे पहले we should कैसे, बेसिकली 3 मेन कॉजेज़ होते हैं फायर के. 3 मेन कॉजेज़ होते हैं. फर्स्ट इज इलेक्ट्रिक फॉल्ट्स.
इलेक्ट्रिक फॉल्ट होता है तो आग लग जाती है, किसी भी वायर में शॉर्ट सर्किट हो गया, देन व्हाट हैपन, इट रिजल्ट्स इनटू अ फायर। दूसरी चीज़ क्या होती है, जो आग लगने वाले एजेंट्स होते हैं लाइक मैच स्टिक, पेट्रोल एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें आग लगाते हैं, ठीक है। थर्ड क्या होता है, लीकेज, लीकेज ऑफ गैस। ये सब जब होता है तो क्या होता है, इट ऑल रिजल्ट्स इन फायर। सो हमें ये सब ना हो, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, वी नीड टू डू सम प्रिवेंशन, वी नीड टू डू सम प्रिवेंशन, इसके बचाव करना चाहिए। कैसे करना चाहिए, सबसे पहले तो कीप ऑन चेकिंग व्हाट आवर इलेक्ट्रिक वायर्स। कहीं से ऐसा नहीं करना चाहिए कोई कट रहा है, कोई ख़राब हो रहा है हमारी बिजली की फिटिंग में, तो हमने उस पर ध्यान नहीं दिया और कीप ऑन वर्किंग फ्रॉम दैट। वी शुड उसको ध्यान रखना चाहिए और उसको अगर इफ़ रप्चर, सो वी शुड व्हाट वी शुड डू, वी शुड चेंज देम, वी शुड पुट आ न्यू इलेक्ट्रिक वायर इंस्टेड ऑफ दैट ब्रोकन वन और डैमेज्ड वन, ठीक है। वी शुड नॉट यूज ब्रोकन इलेक्ट्रिक गैजेट्स। क्यों, बिकॉज अगर हम ब्रोकन इलेक्ट्रिक गैजेट्स यूज़ करेंगे तो व्हाट विल हैपन, ब्रोकन इलेक्ट्रिक गैजेट्स यूज़ करने से शॉर्ट सर्किट कैन हैपन और शॉर्ट सर्किट विल ऑल्सो रिजल्ट इन फायर। तो वी शुड नॉट यूज ब्रोकन इलेक्ट्रिक गैजेट। नाउ वी शुड ऑलवेज कीप फायर स्टिक्स और आई में से मैच स्टिक्स एट कैंडल्स, केरोसिन एक्सेट्रा थिंग्स एट प्रॉपर प्लेस। अगर ये प्रॉपर जगह नहीं होंगी, इधर उधर होंगी, तो व्हाट विल हैपन, बिकॉज ऑफ एनी इंसिडेंट these all things can catch fire and result in a high fire. So we should always keep those things at a proper place. Now we should always keep a check on leakage. अगर कहीं भी लीकेज हो रही है तो उसको हमेशा हमें रोकना है, ध्यान रखना है। और ड्यूरिंग द टाइम ऑफ गैस लीकेज, ड्यूरिंग the time of leakage we should not use lighter। लाइटर का यूज़ नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि अगर लीकेज हो रही है लाइटर से, आपने एक फायर का निकाला तो उससे क्या होगा, दैट गैस, दैट स्प्रेडिंग गैस can become a fire because of that small sting of fire। छोटा सा जो आग निकलती है उससे, उसमें वो fire can result into a big fire because that gas, that is spreading gas because of leakage can hold the fire। So we should always take care of these precautions। And suppose इस precaution से काम नहीं चला and a fire results, whenever there is a fire, तो what we should do, क्या बिजली के सॉकेट पे इलेक्ट्रिक गैजेट कोई फायर बुझाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, जब इलेक्ट्रिक गैजेट्स में पानी फायर लगती है तो क्या हमें पानी डालना चाहिए, वी शुड स्प्रेड वाटर, डालना चाहिए, नहीं। क्यों नहीं डालना चाहिए, वी शुड नॉट स्प्रे वाटर, वाई, क्योंकि अगर हम इलेक्ट्रिक किसी भी गैजेट पे आग लगने पे पानी डालेंगे तो क्या होगा, वो पानी से हमें इलेक्ट्रिक शॉक लग जाएगा एंड अ पर्सन कैन इवन डाई।
तो जब भी इलेक्ट्रिक कुछ भी फायर होती है तो हमें क्या यूज़ करना चाहिए, हमें फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करना चाहिए, फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करना चाहिए। और वी कैन यूज़ सैंड, मिट्टी डाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन कभी भी हमें पानी नहीं डालना है। पानी कहाँ डाल सकते हैं, पानी जब पेपर में आग लगी हो, किसी कपड़े में आग लगी हो, देन वी कैन यूज़ वाटर। जब भी कोई इलेक्ट्रिक आग लगी हो तो हमें पानी नहीं डालना है। और बेसिकली सैंड हमें कहाँ डालना होता है, सैंड हमें डालना होता है जब किसी फायर एजेंट के थ्रू आग लगती है, जैसे पेट्रोल के थ्रू आग लग गई या केरोसिन के थ्रू आग लग गई। Whenever there is a fire because of any fire agent, then we have to use what? We have to use sand. Why? क्योंकि ऑयल जो होता है हमेशा पानी से ऊपर आ जाता है और उसमें आग लग सकती है। That fire will keep on there and keep on spreading. So to avoid that fire, we should always use sand whenever there is fire because of any fire agent. और अगर कभी भी बहुत ज़्यादा ऐसी कंडीशन हो जाए, हम कुछ नहीं कर पाते, तो हमें क्या करना चाहिए, वी शुड शाउट फॉर हेल्प एंड वी शुड डायल द फायर एक्सटिंग्विशर, फायर स्टेशन नंबर। व्हाट इज़ द फायर स्टेशन नंबर, क्या नंबर होता है एम्बुलेंस का, 112। 112 इज़ अ नंबर विच वी शुड डायल वेन एवर देयर इज़ अ बिग स्लॉट ऑफ फायर। समझ में आ गया। सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द फायर, इसके कारण क्या क्या होते हैं, प्रिवेंशन हमें क्या क्या करनी चाहिए, और जब आग लग जाए तो क्या करना चाहिए। अच्छा, सपोज एक चीज़ और बची, अगर ये आग किसी आदमी के लग जाए, इफ़ एनी ह्यूमन कैचेस फायर, देन व्हाट वी शुड डू, उसको बोलना चाहिए क्या करना है, टू रोल ऑन फ्लोर। सबसे पहले टू रोल ऑन फ्लोर और फिर उसको कवर विद ब्लैंकेट, ठीक है। फिर उसको टेक द पर्सन टू डॉक्टर फॉर हेल्प। Got it? What are the 3 points we should take care whenever there any human catches fire? सबसे पहले हमने उसको बोलना है टू रोल ऑन फ्लोर, फ्लोर पे लेट जाए। और एक और प्रिकॉशन है, ये आग लगने का, अगर हमारी किचन में आग लगती है तो हमें क्या करना चाहिए, वी शुड नेवर वेयर नाइलॉन क्लोथ्स while working near फायर। जब भी हम फायर के पास काम कर रहे हैं हमें कभी भी नाइलॉन क्लॉथ्स नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि नाइलॉन क्लॉथ्स बहुत जल्दी आग पकड़ते हैं। तो हमें रोल ऑन फ्लोर करना चाहिए। और अगर हमारे कपड़ों में आग पकड़ी है तो रिमूव द क्लोथ्स। फर्स्ट स्टेप यही होगा, सेकंड ये होगा और थर्ड ये होगा, ठीक है। सबसे पहले अगर ऐसा नहीं है कि आग लग गई तो सबसे पहले कपड़े उतारने लग जाएंगे, नहीं, सबसे पहले उसको कहेंगे कि ज़मीन पे लेटो, रोल ऑन करो, फ्लोर पे लेट के घूमो। फ्लोर पे लेट के जब उसकी आग बुझ जाएगी तो उसके कपड़े रिमूव कर देंगे, ताकि उसके जब कपड़े रिमूव हो जाएंगे तो उसको आगे अंदर और नहीं जलेगा। फिर उसको ब्लैंकेट से कवर कर देंगे, देन हम उसको डॉक्टर के पास ले जाएंगे। दीज ऑल आर द प्रिकॉशंस विच वी शुड टेक केयर, ठीक है। कीप ऑन लर्निंग, अंडरस्टैंड द मैसेज एंड डू द वर्क एज वेल। थैंक यू।